Okay. Today's topic is free electrons free electron model in metals. Free electron model in metals. Okay. Now, before starting the lecture, I think you know about this principle. This is the Heisenberg transferability principle. You cannot know the momentum and the position at the same time. ठीक है? अच्छा. Now, electron metal में या any metal में जो let's take free electron. What do you mean by a free electron? कोई भी चीज free कब होता है? Free when it is there is no potential acting on it. Free means no potential. There is a kinetic energy, there is a potential energy. When the potential energy is zero, then we say that there is no potential. Now, in the case of movement of electrons inside the solid, हम लोग अगर इसको भी अगर we assume that it is free, right? Why do we take it free? Because in metals, इसका जो bonding configuration है, how is the bonding configuration? Bonding configuration है कि there are positive ion pores or there is a sea of electrons inside it. इसका मतलब कि ऐसे पॉजिटिव आयंस हैं प्लस मतलब कॉपर, तो कॉपर आयंस ऐसे मौजूद हैं. इसका बॉन्डिंग क्या इनिशियल की तरह होगा? इनिशियल की तरह नहीं होगा. इनिशियल में देयर इज अ पॉजिटिव, देयर इज नेगेटिव. कंपेयर करो इनिशियल से. दिस इज फॉर एग्जांपल इन मेटल, मान लो कॉपर, एंड यू टेक अनदर इनिशियल और एनी आयनिक कंपाउंड, so there will be an Na plus, Cl minus, Cl minus, Cl minus, फिर हर एक Cl minus के साथ there will be an Na plus, इसके साथ again Cl minus. Okay, so this is an ionic bond, Na plus and Cl minus, ionic bond. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. यहाँ पे positive ion pores of copper exist कर रहा है, and in between those positive ions there is a sea of electron going through it. इसके बीच ऐसे करके sea of electrons जा रहे हैं freely. ठीक है? तो these are basically electrons. ये जो इसको किसी और कलर से लेता हूँ. Let's say take it as red. ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, E minus. C. Or what are these spots?
ये वाला स्पोर्ट्स क्या है? कॉपर आयंस प्लस. दिस इज मेटालिक बॉन्ड. मेटल्स पे ऐसा ही होता है. मेटल्स पे कोई आयनिक बॉन्ड नहीं होता. ओके, क्लियर? यहाँ तक ठीक है. Now we know that electron has a particle nature, has a wave nature. You know, ये तुमको शुरू से पता है. इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर एक है, and a wave nature. Wave nature को हम लोग usually represented by this symbol. What is this symbol? This is called psi. इसका मतलब it's called a wave function. This is called a wave function. और usually quantum mechanics में जिस basic equation पर quantum mechanics based है, that is Schrödinger's equation. वो क्या बोलता है? बोलता है H operator on psi is equal to psi. ठीक है. What is this H operator? This is called Hamiltonian. It is EK, kinetic energy of plus potential energy. है ना? हम लोग जो बोल रहे हैं, now let us come back to the metallic bond. हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि electrons are moving like a sea. तो ये जो electrons है, इसको हम लोग we can tell them as nearly free, not fully free, but nearly free. Nearly free. Completely free नहीं, but nearly free. So compare कर रहे हैं. So if it is nearly free, इस case में भी we can take it that there is no potential acting on it. Potential plus kinetic. Nearly free मतलब there is no potential, so we can take that B is equal to 0. ठीक है. तो इसमें से हैमिल्टोनियन में से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास जो इक्वेशन बचा वो क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इनटू वेव फंक्शन इज इक्वल टू E psi. और काइनेटिक एनर्जी मतलब P²/2m. P is equal to H cross K और momentum operator is equal to minus H cross d by dx H cross d by dx minus तो इक्वेशन हो जाएगा माइनस H क्रॉस स्क्वायर बाई 2m t स्क्वायर psi बाई dx स्क्वायर is equal to p psi.
मैं थोड़ा सा फिर से मैं ये चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है. Let me erase this one. थोड़ा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ. हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं कि मेटल्स में जाना है सर माथा बोलता है. अरे ठीक है. मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसे होता है और मेटालिक बॉन्डिंग. हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड्स डू यू नो? कितने टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं? मेटालिक बॉन्ड, covalent bond, ionic, Anderson, hydrogen bond, so on and so on. So we are not talking about metallic bond. हाँ, there is a lot of bonds. हम लोग आज metallic bond के बारे में बात करें because our main objective is metals. Now, how the metallic bond is different from any other bond? इसके दो properties हैं. एक है नंबर वन इज देयर आर आयनिक कोर्स पॉजिटिव. जिस मेटल का है उस मेटल का आयनिक कोर्स होगा. और दूसरा क्या है? देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. आयनिक कोर्स एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये आयनिक कोर्स है. ये बहुत बोर्ड इसका बहुत खराब है. आयनिक कोर्स है ऐसे और इनके बीच से जा रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऐसे. ठीक है. सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. This is how the metallic bond is. So, since the electrons are not fixed to any particular position, so each electrons we are considering these electrons as nearly free. कोवैलेंट बॉन्ड में के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री बोल सकते हैं. कोवैलेंट बॉन्ड CH ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ना, CNH के कोवैलेंट बॉन्ड होता है या एनी दूसरा कोई बॉन्ड, या कैन वी सी दोज बॉन्ड्स एज फ्री? नो, दे आर लोकलाइज्ड. द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड. ठीक है. बट यहाँ पे देयर इज नो लोकलाइजेशन. यहाँ पे ऐसे फ्री मूव कर रहा है. तो लोग नियरली फ्री बोल रहे हैं. फ्री मतलब एकदम फ्री बोल नहीं सकते बिकॉज देयर आर प्रेजेंस ऑफ दिस आयनिक कोर्स. तो इस नियरली फ्री होने से मतलब है, इट मीन्स दैट माई पोटेंशियल इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ तक ठीक है. अच्छा, नाउ लेट अस मूव टू श्रोडिंगर्स इक्वेशन. हम लोग को क्या बोल रहा है? द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबएटॉमिक पार्टिकल हम लोग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन. H ऑपरेटर psi is equal to E into psi. A function Hamiltonian, and this is consisting of kinetic energy operator plus potential energy operator. So since B is equal to 0, only thing that remains is the kinetic energy operator, which is P square by M. Operator is equal to E operator. Equation हमको मिलता है. What is P? P is equal to
हम जाते हैं P इज इक्वल टू H क्रॉस K, और इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर हम लोग इसको लिख सकते हैं H क्रॉस K बाय डेल्टा। तो जो इक्वेशन हम लोग को मिला वो ये वाला इक्वेशन। अच्छा, अभी इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? इफ वी सॉल्व इट, इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को ये वैल्यू मिलेगा साइन के एक्स इज इक्वल टू e टू और s इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल I k x। मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल, जस्ट योर आइडिया शुड बी, आइडिया बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देकर तो समझ में आ जाएगा। इसका जो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या मिला? ये सोल्यूशन इट इज आई के एक्स, वी आर कॉलिंग दिस। अच्छा, ये इसका शेप कैसा होता है? ऐसा लाइक अ प्लेन, इसको बोलते हैं प्लेन वेव। इस डायरेक्शन पर जा रहा है, हम लोग वी हैव टेकन दिस एज एक्स डायरेक्शन, वी आर कॉलिंग इट एज अ प्लेन वेव। ठीक है, प्लेन वेव क्यों बोलते हैं? व्हाई डू वी कॉल दिस एज अ प्लेन वेव? बिकॉज इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन। ये प्लेन है ना, इसका बेस एक प्लेन है, सो देयर इज अ प्लेन। ठीक है, अच्छा तो एक चीज बोलो कि बिकॉज हम लोग इसके प्लेन के ऊपर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, मतलब प्लेन नहीं है, खुद प्लेन नहीं, इसका जो बेस है दैट इज प्लेन। स्फेरिकल वेव, सर्कुलर वेव बहुत सारा होता है, तो यहाँ पे जैसे प्लेन वेव। अच्छा ना, इस प्लेन वेव की और एक खासियत है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हाट इज दिस वैल्यू? ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी स्क्वायर। हाँ हाँ, वही मतलब इट इज इक्वल टू बेसिकली साइन स्टार। यही है बेसिकली। लेकिन वी ऑलवेज, दिस इज एक्चुअली फिजिकली, इसका मतलब क्या है? फिजिकली इसका मतलब श्रोडिंगर्स कैट, याद है ना? क्या था वो श्रोडिंगर्स कैट? कि देयर इज a box and there is a cat. There is a box and there is a cat. The cat is inside the box, but still cat is outside the box. Why? Because the probability that the cat can stay outside the box makes it outside the box. तो basically क्या है? यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो probability psi square मतलब मैं टॉप फ्लोर में बैठा हूँ, ठीक है, और मैं नीचे भी हो सकता था, लेकिन मैं ऊपर में बैठा हूँ। अच्छा, कोई बाहर से कोई आदमी आके पूछे कि मैं कहीं यूनिवर्सिटी में हूँ, तुम्हारा क्या आंसर होगा? हाँ हूँ, लेकिन मैं टॉप में भी हूँ और नीचे में भी हो सकता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी है मेरा टॉप पे भी होना, नीचे भी होना। दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट आई कैन बी इनसाइड द रूम। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी है, और इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं, इट हैज बीन फाउंड दैट इट इज इक्वल टू E1। प्रोबेबिलिटी 1 मतलब डेफिनेटली इट इज प्रेजेंट ऑल थ्रू आउट। मतलब ये जो प्लेन है इट इज प्रेजेंट ऑल थ्रू आउट इन स्पेस।
हर जगह पे तुम जाओगे तो इसका होने का एक प्रोबेबिलिटी है 100%। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल आई की एक्स, इसमें जो देखोगे ये है इज इक्वल टू, बेसिकली इसको मोमेंटम वेक्टर बोलते हैं, जैसे 2 पाई बाई लैम्डा, सिंस p इज इक्वल टू h क्रॉस k, इसको अलग अलग नाम से कहा जाता है, प्रोपगेशन वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, k वेक्टर। सो बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ द मोमेंटम। यहाँ पे देखो, यू नो k एंड यू नो x, यू नो द मोमेंटम एंड यू नो द पोजीशन, लेकिन ये कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, किससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो अच्छा, एक पार्टिकल, सपोज हम लोग की कोई क्लासिकल पार्टिकल ऐसे फ्री स्पेस में कोई पार्टिकल घूम रहा है विद अ सर्टेन वेलोसिटी एंड अ सर्टेन मोमेंटम, तो बोल सकते हैं ओके दिस इज द पार्टिकल, लोकलाइज्ड पार्टिकल, ठीक है। क्लासिकल, अब हम क्लासिकल और क्वांटम के बीच का डिफरेंस समझेंगे। क्लासिकल में हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है, मेरा मोमेंटम फिक्स्ड है और एनर्जी भी फिक्स्ड है। p स्क्वायर बाय 2 मतलब h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर बाय 2। काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों क्लासिकली फिक्स्ड है, मैं अगर मोमेंटम और पोजीशन जानता हूँ। लेकिन मैं क्वांटम में चला हूँ, क्वांटम, तो क्वांटम तो डिनोट कर रहा है इससे, वेव से, एंड इट सेज दैट psi स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, मतलब मुझे इफ आई लाइक टू रिप्रेजेंट पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, पार्टिकल मतलब यहाँ पे हम लोग नॉर्मल पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, क्वांटम पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। If you would like to represent the particle in quantum mechanics, this is a very big question. क्वांटम मैकेनिक्स में चल रहा है तुम्हारा साइज है, क्योंकि वेव फंक्शन, तो वेव से मैं एक पार्टिकल को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? अगर आई डिफाइन अ पार्टिकल विद अ वेव, वेव तो ऑलरेडी ऑलवेज इट्स मूविंग लाइक दिस, कोई किसी भी जगह पे फिक्स नहीं है ना, तो वहाँ पर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। So in quantum mechanics, any particle is represented not in terms of a wave, but rather a wave packet. ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक थोड़ा क्लियर है। अच्छा, तो लेट अस समराइज। अभी तक हम लोगों ने व्हाट हैव वी डिस्कस्ड सो फार। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि मेटल्स के केस में electrons are nearly free, मतलब V is equal to 0 है ना। तो उसका अंडर वेव फंक्शन, इसका जो सोल्यूशन है h psi is equal to E psi, जो श्रोडिंगर्स इक्वेशन है, इस श्रोडिंगर्स इक्वेशन का as per this condition, इसका solution we are getting as e to the power I k x. This is a plane wave, and also this is valid. This is causing a contradiction because we are now
representing it as a wave which has equal possibility of being found everywhere, because this is the probability. So it has the equal probability of being found anywhere in space. Psi square is equal to 1. सर वो प्रोबेबिलिटी इसका वेव फंक्शन का है, पार्टिकल का है, जिस सबएटॉमिक पार्टिकल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका। मतलब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब मेरा पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ इससे क्या बोल रहा हूँ, इससे हम लोग मैं बोल रहा हूँ इसका फिक्स पोजीशन है या फिक्स्ड मोमेंटम है। लेकिन इफ आई एम रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एन वेव, दोनों चीज नहीं होगी, ये तो कॉन्ट्रडिक्ट तो यही कर रहा है, तो दोनों एक साथ कैसे चेंज होगा? तो मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रेजेंटेशन, हम लोग जिस तरीके से एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे वो सिर्फ एक वेव फंक्शन से नहीं होगा। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट अ पार्टिकल सिंपली एज अ वेव और अ वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स। हमको क्या करना पड़ेगा? वेव से जो हम लोग साई एक्स जो बोल रहे थे ना, इससे हमको ले जाना पड़ेगा वेव पैकेट्स। What is a wave packet? It is a combination of waves having different momentum. ठीक है, तो वेव पैकेट ये जो स्मॉल साई एक्स है ये हो जाएगा कैपिटल साई एक्स, कैपिटल साई एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन by a exponential I kx ये हो गया वेव पैकेट। ये इंपॉर्टेंट है। फाई के मतलब कलेक्शन ऑफ मोमेंटम। हाँ, टोटली वेव पैकेट, इसमें से ये जो फंक्शन है ये डिनोट कर रहा है कि क्या है, के है मोमेंटम। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ मोमेंटम। तो ग्राफिकली इन चीज़ों को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ गाउसियन वेव। फाई पी अगर यहाँ पे फाई पी स्क्वायर प्लॉट करूँ तो ये मुझे ऐसा एक प्लॉट देगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे साई एक्स स्क्वायर प्लॉट करूँ ये है ओरिजिनल पोजीशन मोमेंटम वैल्यू। दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन वैल्यू दैट आई एम लुकिंग फॉर। दिस इज P0 and this is the original position value that I am looking for. This is x Gaussian plot, बेल कर्व। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये जो विड्थ, इसको फुल विड्थ ऑफ मैक्सिमम भी बोलते हैं, विड्थ ऑफ द फंक्शन। इस केस में ये विड्थ हो जाएगा डेल्टा पी, इस केस में क्या होगा
ये जो हम लोग लिखते हैं ना डेल पी डेल एक्स डेल एक्स डेल पी, इसका मतलब क्या है? मैं अगर इसको पतला कर देता हूँ तो विल इट हैव एनी इफेक्ट ऑन दैट एज पर दिस इक्वेशन? ध्यान से देखिए, इफ आई मेक डेल्टा पी स्मॉलर, हाँ पी मोमेंटम है, मैं अगर डेल्टा पी को पतला कर देता हूँ तो विल इट हैव एन इफेक्ट ऑन दैट वन? क्या होगा? बड़ा हो जाएगा बिकॉज दो बट दे आर कांस्टेंट, दे आर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं इसको जितना छोटा करूंगा ये उतना बड़ा होगा। ऐसा कर दूं तो ये हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, समझ रहे? ठीक है ना? इसलिए बोलते हैं पी और या फिर एक या फिर के भी बोल सकते हो, ये और एक्स, ये दिस इज द के स्पेस, मोमेंटम स्पेस, एंड दिस इज द रियल स्पेस, and they are connected by something called Fourier transform. Fourier transform हुआ है? मैथमेटिक्स में हुआ है ना Fourier transform? क्या हुआ? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म तो हुआ है, लाप्लास और फूरियर जरूर जरूर हुआ है, ऐसा नहीं क्यों हो नहीं सकता? तो है हुआ ना? क्या एल एल नहीं, एल हॉस्पिटल सूल नहीं, एल हॉस्पिटल सूल अलग चीज है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। फ्रीक्वेंसी और टाइम, कोई एक डायमेंशन में है जहाँ का फ्रीक्वेंसी से हम लोग चीज़ों को मल्टीप्लाई, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा एक डायमेंशन है जहाँ पर टाइम। अच्छा, मैं एक छोटा सा इसका माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट्स में मैं एग्जांपल देता हूँ। माइक्रोस्कोपिक में मैंने आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस क्लास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM। ज़्यादा टफ हो रहा है क्या? इज इट गेटिंग टू मच टफ? जैसे TEM में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, वहाँ पर हम लोग को एक चीज़ मिलता है जिसको बोलते हैं SAED पैटर्न, सिलेक्टिव एरिया इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। अभी उसका फोटो तुम लोग देखोगे तो एक ऐसा एक डार्क स्क्रीन होता है और उसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। देयर इज अ डार्क स्क्रीन एंड देयर आर डॉट्स। तुम लोग अभी भी यू कैन सर्च इन गूगल में देख सकते हो, देखो SAED पैटर्न, देखो जस्ट राइट इट डाउन, गूगल में देखो। इमेजेस में जाओ, there is a dark screen and there are some white spots. That is a reciprocal space. ये जो मैं के स्पेस के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, मोमेंटम स्पेस, so that is a momentum space. अच्छा, तो मैं इसको कितना पतला, अच्छा इसका पतला करना मतलब क्या? आई एम लोकलाइजिंग, मैं उतना डेफिनेट हो रहा, मेरा मोमेंटम कितना होगा। तो करते करते देयर विल बी अ टाइम व्हिच विल बी द लिमिट ऑफ लोकलाइजेशन। सब कुछ का एक लिमिट होगा, देयर विल बी लिमिट ऑफ लोकलाइजेशन। दैट लिमिट ऑफ लोकलाइजेशन इज अगेन represented by a function called Dirac delta function.
डिराक डेल्टा फंक्शन। तो मैं फंक्शन के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ, देन वी विल ट्राई टू कोरिलेट विद दिस। सो डिराक डेल्टा इसको डेल्टा एक्स ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कभी कभी इसको डेल्टा एक्स माइनस एक्स जीरो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हम लोग बहुत सिंपली अगर इसको तुम रिप्रेजेंट करना चाहो तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इज इन्फिनिटी एट x is equal to 0, ठीक है, and it is equal to 0 at x greater than 0। तो इसका मतलब है ऐसा एक प्लॉट। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस एक्स जीरो डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि इन दिस प्लॉट मेड द प्लॉट इन सच अ वे, इसका बीच में एक आइदर जीरो, अच्छा जीरो है और एक्स है, व्हाटएवर, इट्स कंसीडर इट एज एक्स जीरो। मुझे अगर एग्जैक्ट एक्स जीरो वैल्यू लाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके विड्थ को उतना कीप ऑन रिड्यूसिंग द विड्थ, ठीक है, विड्थ रिड्यूस करते करते देयर विल बी अ पॉइंट वेयर ये बहुत शार्प हो जाएगा, लेकिन इसका एक कंडीशन है कि जो एरिया अंडर द कर्व विल रिमेन द सेम। सो तो दिस इज अ फंक्शन, तो दिस इज द लिमिट ऑफ लोकलाइजेशन। मतलब इसको मैं छोटा कर रहा हूं, मतलब क्या, आई एम मेकिंग इट मोर लोकलाइज्ड स्पेस। लोकलाइज करते करते इससे ज़्यादा लोकलाइज्ड हो नहीं सकता। तो इसका यूज़ किया जाता है इन वेव पैकेट्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ मेटालिक वेव फंक्शंस में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ, देन स्टॉप कर, बिकॉज एक दिन में इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम लोग अगर मेटल्स की बात करें, लेट्स कम बैक टू द मेटल्स। मेटल्स में तुमको क्या लगता है, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, these are the ionic cores and electrons are moving inside this। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, आर दे लोकलाइज्ड? लोकलाइज है कि नहीं? मैंने इनको कहा था नियरली फ्री। नियरली फ्री बट नॉट एग्जैक्टली फ्री। मैं इसके साथ द डेल्टा फंक्शन, आई कैनॉट एसोसिएट अ डेल्टा फंक्शन विद रियल पार्टिकल्स। द रीजन इज, इफ आई एसोसिएट अ डेल्टा फंक्शन विद अ रियल पार्टिकल, इसका मतलब है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इट इज बाउंड टू द सर्टेन रीजन। इलेक्ट्रॉन इसके पास ही आके रुक जाएगा। हम लोग तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, ठीक है, देयर इज नो 100% लोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इट इज टोटली फ्री, बिकॉज इसमें पोजीशन एक्ट हो रहा है। सो देयर आर टू कंपीटिंग। नहीं, इसलिए हम उसको बोल रहे थे नियरली फ्री। नियरली फ्री मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, but it is almost equal to zero, no, not exactly equal to zero। थोड़ा लोकलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, तो अदरवाइज मैं इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कैसे करूँगा? क्लासिकल कोई पार्टिकल को मुझे अगर डिफाइन करना है तो आई नीड टू नो द पोजीशन एंड द मोमेंटम। तो मैं अगर सिर्फ वेव के ऊपर छोड़ देता हूँ तो दैट इज नॉट पॉसिबल।
सो ये बोलते हैं कि इसको यहाँ पर भी वेव पैकेट्स होते हैं, वेव पैकेट्स हो रहे हैं, लेकिन ये वेव पैकेट्स किस चीज़ के वेव पैकेट्स हो रहे हैं? वेव पैकेट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेव, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक वेव्स। ब्लॉक वेव्स आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड। डू यू रिमेंबर व्हाट इज अ ब्लॉक वेव इज? मतलब इसलिए अगर लैटिस कांस्टेंट है a, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लॉक वेव इज इन दिस वे, ikx is equal to ukx exponential ikx. मतलब this is a block function. ये ब्लॉक फंक्शन क्या डिनोट कर रहा है? ये ब्लॉक फंक्शन इज टेलिंग यू अबाउट द पीरियोडिसिटी ऑफ द लैटिस। Means it says that if uk r plus a is equal to uk r, what is a? This is it. So the function is repeating itself. So this is how the potential is, है ना? और मैं इसके साथ क्या जोड़ रहा हूँ? एक प्लेन वेव को जोड़ रहा हूँ. So this is a block wave. So in the case of now इसका ये block waves का wave packets, इस block wave का wave packets will be the wave packets for electrons inside. ठीक है? मैं छोटा सा क्विज कर लूँ? नहीं सर, अभी हम थोड़ा नहीं ठीक है, ओके ओके, दैट्स इट नॉट मार्क्स तो नहीं रहेगा इसमें। आज के बाद ओके, दैट डजंट मैटर। क्लास अरे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा बोलो इसके आई के एक्स ये क्या है? अगेन व्हाट इज दिस? व्हाट इज एक्सपोनेंशियल आई के एक्स? क्या चीज को डिनोट करता है? वेव ऑफ प्लेन वेव डिनोट करता है। प्लेन प्लेन क्या ओके। इन क्वांटम मैकेनिक्स में हाउ डू वी रिप्रेजेंट पार्टिकल्स? बाय they are represented wave packets. ठीक है, in terms of wave packets. Okay, so if I write a wave packet in this fashion, what is this phi k है? Phi k क्या है? Collection of moment. It is a collection of moment. बोल दिया अच्छा मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स दे आल्सो आर रिप्रेजेंटेड बाय वेव पैकेट. किस तरीके का वेव पैकेट? What type of wave packets in metals? एक नाम है उसका. Type of wave packets. Block wave packets. कोई भी wave packet. Wave packets, block wave packets. VLOCH. That is a wave packets made out of block waves. Okay, so थैंक यू I don't know. फर्स्ट सेकंड सर मेरे
कौन कौन आया था? एलियन आया था। सर थर्सडे को मेरा टेनिस खेला है। मेरा ठीक है, मैं लगा दूँगा। नवीन, निशान, सब मेरा है। हाँ तुम्हारा लगा दिया। बोला बी हरीश, अच्छा ठीक है। मीना 1 2 3 4 5 and 6 चलो गए। सर थर्सडे का। ठीक है, आज मैं करना कर दूंगा उसको, मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, सो वी विल मीट अगेन ऑन वेडनेसडे, है ना? ठीक। अब देखो, जस्ट ट्विन माइंड को ओपन करो और देखो कितना अच्छा नोट्स